اللہ تبارک و تعالی نے اس روئے زمین پر جتنے بھی انبیاء کرام کو بھیجا ان کو کسی نہ کسی ایسے کمالات سے نوازا جن کا عقل انسانی تصور بھی نہیں کر سکتی۔ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے کمالات اور معجزے عطا فرمائے جن سے اللہ تبارک و تعالی کی شان کبریائی کی جلوہ گری نظر آتی ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں اللہ تبارک و تعالی کے ایک ایسے نبی کا ذکر کریں گے جن کے واقعے کو اللہ تبارک و تعالی خود قرآن پاک میں احسن القصص بیان فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا حسن عطا فرمایا تھا کہ جو کوئی بھی آپ کو دیکھتا وہ آپ کا دیوانہ ہو جاتا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو حسن عطا کیا گیا وہ حسن کس قسم کا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام ہر وقت اپنے چہرے پر نقاب کیوں لگا کر رکھا کرتے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے عشق کرنے والی مصر کی شہزادی زلیخا کون تھی، اور زلیخا نے ایسا کون سا خواب دیکھا تھا کہ وہ 9 سال کی عمر میں ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو بنا دیکھے ان کے عشق میں مبتلا ہو گئیں۔ اور جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف مائل کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، اور پھر بعد میں حضرت زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی کس طرح ہوئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مصر کی بڑی بڑی عورتوں نے اپنی انگلیاں کیوں کاٹ ڈالیں۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پرپوتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 4 شادیاں فرمائیں جن میں سے 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ 6 بیٹے آپ کی پہلی شادی میں سے تھے اور 2 بیٹے باقی 3 شادیوں میں سے ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری شادی میں سے پیدا ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا نام راحیل تھا۔ حضرت راحیل میں سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین علیہ السلام۔ پیارے دوستو، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے دوسرے بیٹوں کی نسبت حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد اور بغض رکھا کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے 2 وجہ سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ نمبر 1، جب حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے تو بچپن ہی سے آپ کی پیشانی مبارک سے نبوت کے آثار نمایاں نظر آتے تھے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ بچپن ہی میں حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ زلیخا کون تھی، اور یہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق کے اندر مبتلا ہوئی، اور کس طرح اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف مائل کیا، اور پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بڑھاپے سے جوانی کیسے عطا فرمائی، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کا نکاح کس طرح ہوا۔ پیارے دوستو، راحیل عورت جو کہ تاریخ کی کتابوں میں زلیخا کے نام سے مشہور ہوئی، وہ تیموس بادشاہ کی اولاد میں سے تھی، اور یہ انتہائی خوبصورت شہزادی تھی۔ حضرت علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ 9 سال کی عمر میں زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، اور وہ اسی وقت آپ کا دیدار کر کے آپ کے حسن کی دیوانی ہو گئیں۔ زلیخا نے کئی مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب میں دیکھا۔ جیسے جیسے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب میں دیکھتی ویسے ویسے ان کا عشق بڑھتا جاتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب میں عزیز مصر کے روپ میں دیکھا، اور قدرت الہی سے ایسا ہوا کہ اسی سال زلیخا کے لیے عزیز مصر نے رشتہ بھیجا۔ اس طرح زلیخا نے عزیز مصر کے رشتے کو فوراً قبول کر لیا، کیونکہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے روپ میں دیکھا تھا، اور وہ پہلے ہی آپ کے حسن کی دیوانی ہو چکی تھی۔ لیکن وہ رشتہ حقیقت میں اس وقت کے عزیز مصر عطفیر بن رحیب کا تھا۔ چنانچہ اس طرح زلیخا اور عزیز مصر کی شادی ہو گئی۔ شادی کی پہلی رات زلیخا کو پتا چلا کہ یہ وہ لڑکا نہیں جو میرے خواب میں آتا ہے اور جس کے حسن کی میں دیوانی ہوں، بلکہ یہ تو کوئی اور ہے۔ چنانچہ وقت یوں ہی گزرتا گیا، اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو چند سکوں کے عوض حسد اور تکبر کی وجہ سے بیچ ڈالا، اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام بکتے بکتے مصر کے بازاروں میں آ گئے۔ اس طرح جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازاروں میں تشریف لائے تو پورے مصر میں یہ بات پھیل گئی کہ مصر کے اندر ایک ایسا غلام بکنے کے لیے آیا ہے جس کے حسن و جمال کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، جو انتہائی حسین و جمیل ہے۔ اس وقت مصر کے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھنے کے لیے مصر کے بازار میں جمع ہو گئے، اور ہر کسی کی یہ خواہش تھی کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لے۔ اور ادھر زلیخا کے شوہر عزیز مصر کو جب اس بات کی خبر ملی تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے وزن کے برابر سونا دے کر اور ان کے وزن کے برابر مشک اور ریشمی کپڑے دے کر خرید لیا، اور اس طرح عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر اپنے گھر لے آیا۔
जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इस वाक़े की तरफ इशारा करते हुए इरशाद फरमाता है, और मिस्र वालों में से जिसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदा था उसने अपनी बीवी से कहा कि इसे बहुत इज्जत और एहतराम से रखो, मुमकिन है कि ये हमें फायदा पहुंचाए या हम इसे अपना बेटा बना लें। यूं हमने मिस्र की सरजमीन में यूसुफ के कदम जमा दिए। प्यारे दोस्तों, यूं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बिकते बिकते अजीजे मिस्र के महल में पहुंच गए और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीजे मिस्र के महल में सुकून से रहने लगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम चूंकि बचपन ही में हुस्न में बाकमाल थे, लेकिन आपने जब अपनी जवानी की दहलीज में कदम रखा तो आपका हुस्न अपने अरूज पर आ गया और उधर जुलेखा जो कि आपको पहले ही अपने ख्वाब में देख चुकी थी, वो आपको देखते ही आप पर फरेफ्ता हो गईं। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और जिस औरत के घर में था वो उसे फिसलाने लगी और दरवाजे बंद कर लिए और कहने लगी कि लो आओ। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह की पनाह, तेरा शौहर तो मेरा आका है जिसने मुझे इज्जत दी, मैं ऐसा जुल्म नहीं कर सकता, बेशक जालिम निजात नहीं पाते। प्यारे दोस्तों, जुलेखा जो कि बचपन ही से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने ख्वाब में देखती आ रही थी, जब उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने सामने पाया तो अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाही और अपने महल के कमरों में बंद करके हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह की दावत देने लगी। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह तबारक व तआला देख रहा है। लेकिन जुलेखा अपनी ख्वाहिश पूरी करने से बाज ना आई। इस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कमरों के अंदर बंद करके जुलेखा ने अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाही तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे की तरफ भागे और दरवाजे अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से खुलते गए। इस तरह जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भागते भागते महल के आखिरी दरवाजे पर पहुंचे तो जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पीछे से कमीज से पकड़ लिया, जिसकी वजह से कमीज पीछे से फट गई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब आखिरी दरवाजा खोला तो अपने सामने अजीजे मिस्र को पाया। अजीजे मिस्र ने जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को यूं बंद कमरों से निकलते हुए देखा तो जुलेखा ने शोर मचाया कि यूसुफ मेरे साथ बदकारी करना चाहता है। और जुलेखा अपने शौहर अजीजे मिस्र से बोली, जो शख्स तेरी बीवी के साथ बुरा इरादा करे तो बस उसकी सजा यही है कि उसको कैद कर दिया जाए और उसे दर्दनाक सजा दी जाए। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला सूरह यूसुफ की आयत नंबर 25 में इरशाद फरमाता है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बोले, यही मुझे अपनी नफसानी ख्वाहिश पूरा करने पर मजबूर कर रही थी। उस वक्त अजीज मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से पूछा कि तुम्हारे पास क्या सबूत है। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि उस वक्त उस कमरे में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलेखा के अलावा एक ऐसा बच्चा मौजूद था जो अभी छोटा था और वो बोल भी नहीं सकता था। उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी की गवाही दी। उस बच्चे ने कहा कि अगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज आगे से फटी हुई है तो इसका मतलब है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम गुनाहगार हैं, और अगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज पीछे से फटी हुई है तो जुलेखा गुनाहगार है। इस तरह उस बच्चे ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से बोलकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी की गवाही दी, जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला सूरह यूसुफ की आयत नंबर 26 में इरशाद फरमाता है, औरत के घर वालों में से एक गवाह ने गवाही दी कि अगर इसका कुर्ता आगे से फटा हुआ है तो औरत सच्ची है और वो झूठा है, और अगर इसका कुर्ता पीछे से फटा हुआ है तो औरत झूठी है और वो सच्चा है। इस तरह जब अजीजे मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज को देखा तो वो पीछे से फटी हुई थी। उस वक्त अजीजे मिस्र ने जुलेखा से कहा कि ये तुम्हारा फरेब है और कुछ शक नहीं कि तुम औरतों के फरेब बहुत बड़े होते हैं। फिर अजीजे मिस्र ने कहा कि यूसुफ इस बात का ख्याल न कर और जुलेखा तू अपने गुनाह की बख्शिश मांग, बेशक खता तेरी है। प्यारे दोस्तों, जुलेखा का हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह की दावत देने का ये वाकया पूरे मिस्र में मशहूर हो गया और पूरे मिस्र की औरतें जुलेखा को लान तान करने लगी कि अपने गुलाम के साथ इश्क के अंदर मुब्तला हो गई है और अपने गुलाम के साथ इश्क कर बैठी है। इस तरह मिस्र की तमाम औरतों ने मिस्र के अंदर ये चर्चा करना शुरू कर दिया कि अजीजे मिस्र की बीवी अपने गुलाम को चाहती है और उसकी मोहब्बत के अंदर फरेफ्ता है। हम तो उस औरत को सरी गलती पर देखते हैं। जब जुलेखा ने देखा कि पूरे मिस्र के अंदर मुझ पर लान तान हो रही है और तमाम औरतें मुझे गलत समझ रही हैं, उस वक्त जुलेखा ने तमाम मिस्र की औरतों को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न दिखाने का इरादा किया ताकि उनको भी पता चल सके कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कितने हसीन हैं और जुलेखा किस वजह से उन पर फरेफ्ता हुई है। एक दिन जुलेखा ने मिस्र के तमाम बड़े बड़े उमरा की औरतों को अपने महल के अंदर दावत दी और मिस्र की उन तमाम औरतों को फल तराशने के लिए पकड़ा दिए और साथ ही जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके सामने से गुजरने का कहा। इधर मिस्र की औरतें छुरियों के साथ फलों को तराश रही हैं और उधर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके सामने जलवा फरोज हैं। बस फिर जब उन औरतों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखा तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखते ही मदहोश हो गयी और फलों की बजाय अपनी उंगलियां काट डाली। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वहाँ से तशरीफ ले गए तो मिस्र की औरतों ने देखा कि उनकी उंगलियां कटी हुई हैं। तो उस वक्त जुलेखा बोली कि यही है वो गुलाम जिसके बारे में तुम मुझ पर लान तान करती थी।
और मुझ को बुरा भला कहती थी। जुलेखा ने मिस्र की औरतों से कहा कि मैंने हर तरह से अपना मतलब पूरा करने की कोशिश की, लेकिन इसने अपने आप को रोक लिया, और जो कुछ मैं चाहती हूँ अगर ये मेरी ख्वाहिश पूरी ना करेगा तो जरूर इसको कैद कर दिया जाएगा और ये रुसवा होगा। चुनाचे जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद कराने के लिए ये चाल चली कि वो अपने शौहर के पास गई और उससे कहने लगी कि पूरे मिस्र में मुझ पर लान तान हो रही है और लोग मुझे बुरा भला कह रहे हैं, क्यों ना हो कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इस बदकारी की तोहमत लगाकर उसको कैद में डाल दिया जाए। इस तरह मिस्र के लोग ये समझेंगे कि गुलाम का गुनाह है और मेरी इज्जत भी बच जाएगी। चुनाचे इस तरह जुलेखा ने अपने शौहर अजीज मिस्र की बहुत मिन्नत समाजत की तो अजीज मिस्र हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद करने के लिए राजी हो गया। अजीज मिस्र हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि मेरी बीवी की इज्जत पूरे शहर में दांव पर लग गई है, अब तुम्हें कैद में डालना मेरी मजबूरी है। चुनाचे अजीज मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद में डाल दिया। इस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी के 7 साल बेगुनाह कैद के अंदर गुजार दिए। 7 साल बाद अजीज मिस्र ने एक अजीबो गरीब ख्वाब देखा जिसकी ताबीर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बयान की। उस ख्वाब की ताबीर बताने के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद से रिहाई मिल गई। चुनाचे कुदरत इलाही से ऐसा हुआ कि अजीज मिस्र हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया और अपनी वफात से पहले ही मिस्र के तमाम तर इख्तियारात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर दिए। चुनाचे इस तरह अजीज मिस्र रैयान बिन वलीद ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ही अजीज मिस्र मुकर्रर कर दिया। चुनाचे अजीज मिस्र की वफात के बाद वक्त यूं ही गुजरता गया और जमाने ने कई अरूजो जवाल देखे और अजीज मिस्र की वफात के बाद जुलेखा तंग दस्त और मोहताज हो चुकी थी। उस पर बुढ़ापा गालिब आ चुका था और उसकी आंखों की बिनाई भी चली गई थी। जुलेखा की इस बेबसी और इस हालत को देखकर किसी ने जुलेखा को ये मशवरा दिया कि आप अपनी बेबसी और अपना मामला हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करें, जो कि उस वक्त के बादशाह थे। हो सकता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आप पर रहम फरमाएं और आपकी मदद करें और आपको गनी कर दें, क्योंकि आपने भी उनका ख्याल रखा था और उनको इज्जत दी थी। चुनाचे जुलेखा एक ऐसे टीले पर बैठ गयी जहाँ से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम गुजरा करते थे और वहाँ बैठकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इंतजार करने लगी। इधर जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी कौम के तकरीबन 1 लाख मुअज़्ज़ज़ लोगों के साथ और वजीरों और मशीरों के साथ निकले तो जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू को महसूस कर लिया और आप खड़ी हो गयी और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को आवाज दी और कहने लगी कि पाकी है उस जात के लिए जिसने गुनाह के सबब बादशाह को गुलाम और इताअत के सबब गुलाम को बादशाह बना दिया। चूँकि जुलेखा उस वक्त बहुत बूढ़ी हो चुकी थी तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आप कौन हैं? तो जुलेखा ने जवाब दिया कि मैं वही हूँ जो आपकी खिदमत किया करती थी और आपके बालों में अपने हाथों से कंघी किया करती थी और आपके रहने की जगह की खुद सफाई किया करती थी। अब मुझे मेरे गुनाह की सजा मिल चुकी है, मेरी कुव्वत खत्म हो गई, मेरा माल जाया हो गया और मेरे आंखों की रोशनी चली गई और मैं लोगों से सवाल करने पर मजबूर हो गई हूँ। जुलेखा की ये बात सुनकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत रोए और जुलेखा से फरमाया, क्या तेरे दिल में मेरी मोहब्बत में से कुछ बाकी है? तो जुलेखा ने अर्ज किया, जी हाँ, उस जात की कसम जिसने हजरत इब्राहिम को खलील बनाया, मुझे आपकी तरफ एक नजर देखना जमीन भर सोना चांदी मिलने से महबूब है। इसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जुलेखा की तरफ पैगाम निकाह भेजा कि अगर आप रजामंद हो तो मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ। जब जुलेखा को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये पैगाम मिला तो जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के पैगाम लाने वाले से कहा कि मैं जानती हूँ कि वो मुझसे मजाक कर रहे हैं, क्योंकि मेरी जवानी और हुस्नो जमाल के वक्त उन्होंने मेरी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी और अब जब कि मैं बूढ़ी, अंधी और फकीर हो चुकी हूँ तो वो मुझे कैसे कबूल करेंगे। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला की रजा के मुताबिक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हजरत जुलेखा का निकाह हो गया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला के इसमें आजम का वसीला पेश करते हुए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ के सदके हजरत जुलेखा रहमतुल्लाहि तआला अलैहा का हुस्नो जमाल, बसारत और जवानी लुटा दी। जब हजरत जुलेखा का हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से निकाह हुआ तो उस वक्त आप बाकरा थी और आपके बतने अतहर से 2 बच्चे पैदा हुए। प्यारे दोस्तों, इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के गुलाम से मिस्र का बादशाह बना दिया। बेशक अल्लाह तबारक व तआला हर चीज पर कादिर है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और उनकी मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब